Hello students, we are going to continue with this exercise 1.1. So last time I think we did question 4. So I am taking up question 5. Exercise 1.1. Check whether the relation R defined by R equal to AB such that A is less than or equal to BQ is reflexive and transitive, is reflexive, symmetric or transitive. We have to check. Now it is given, this relation is given on the set of real numbers. So here AB belongs to, I should write for all AB belongs to its real number. Just darken it so that this means relation and this means real number. अब देखिए अगर कोई नेचुरल नंबर भी होता तो ठीक हो जाता. For this we want to prove whether it is symmetric or what. अच्छा तीनों का करना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव में क्या है कि ए मस्ट बिलोंग टू आर, राइट. और अगर ये नेचुरल नंबर्स पे होता तो हो जाता, बट आई विल राइट बिकॉज ए डज नॉट बिलोंग टू आर. आर मीन्स रिलेशन, does not belong to R for all A belonging to real numbers. I am darkening this. Darken का मतलब जो darken वाला वो real number है और जो light वाला वो relation है. For example, मैं लेता हूँ 1/2. 1/2 is greater than 1/2 का क्यूब. ठीक है, होना क्या चाहिए था, अगर a है तो a शुड बी लेस देन और इक्वल टू a क्यूब, बट 1/2 जो है वो 1/2 के क्यूब से ग्रेटर है, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक पे आते हैं. सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इफ AB belongs to R then BA should also belongs to R, right? तो सिमेट्रिक का देखते हैं. सिमेट्रिक में है फॉर ऑल AB इफ AB belongs to relation R then BA does not belong to R for all AB belonging to real numbers, right? एग्जाम्पल दे देते हैं इसकी भी. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज हम लिखते हैं 2 और 10 लिख लेते हैं. 2 10 belongs to R as 2 is less than 10 cube, but 10 2 does not belong to R as 10 is greater than 2 cube. तो 10 लेस होना चाहिए था, 2 क्यूब से ग्रेटर है, therefore it is not symmetric. तो फिर से समझ लें, अगर एक भी ऐसी एग्जांपल आप दे दें जो इसको सेटिस्फाई नहीं करती तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बनेगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव के लिए देखें. ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि इफ AB belongs to R, BC belongs to R, then AC must belong to R for all A, B, C belonging to the set of real numbers. तो इसको मैं डार्कन कर रहा हूं इसीलिए. ठीक है, अब एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी. अगर हम कह रहे हैं अच्छा इट शुड बी, बट इन दिस केस
AC does not belong to R. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे इसमें एक ले लेते हैं नंबर, लेट्स से 10. 10 should be less than the cube of some number. 10 3 ले लेते हैं, ठीक है. 10 is less than 3 cube, करेक्ट. अब ले लेते हैं, ये आ गया A, ये आ गया B. 10 3 belongs to R, राइट. 3 2 ले लेते हैं. 3 is less than 2 cube. 3 is less than 2 cube. It also belongs to R, right? But 10 2 does not belongs to R. यानी 10 is not less than 2. ठीक है. Therefore, it is not transitive. It is not transitive. तो यहाँ A भी belong कर रहे थे. A लेस आ रहा है B क्यूब से. 3 का क्यूब 27 है. 10 is less than B क्यूब. फिर 3 और 2 ले लिया. 3 is less than 2 क्यूब. 2 क्यूब 8 बनेगा. और फिर आना चाहिए A and C. A and C. ये B है, ये C है. तो AC नहीं बिलोंग करते because 10 is not less than 2 cube. It is greater than 2 cube. Therefore, it is not transitive. Now, next देखें. Question 6. Show that the relation R in the set 1 2 3 given by this is symmetric but neither reflexive nor this. Show that relation R in the set. Set क्या? A हमारा है 1 2 3 और रिलेशन दिया है 1 2 2 1 1 2 2 1. अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है. What we need to show here is that it is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो इसको आप खुद लिख लेंगे. लिखने का तरीका मैंने बता दिया. देखें 1 1 2 2 3 3 बिलोंग नहीं करता. Therefore it is not reflexive. 1 2 करता है, 2 1 करता है, तो it is symmetric. Yes, it is symmetric. Right? Now transitive के लिए क्या होना चाहिए? 1 2 करता है, 2 1 करता है. यानी ये A आ गया, ये B आ गया. ये B ही है, ये C है. A भी करता है, BC करता है, तो AC भी करना चाहिए, 1 1 करना चाहिए. वो नहीं कर रहा. Therefore, it is not transitive. Let me move on to the next question then. 7. Show that the relation in the set A of all the books in a library. A क्या set है? It is set of all books in a library. Library of a college. ठीक है. Given by R equal to xy, relation दिया है xy such that x and y have same number of pages. X and y have same number of pages. Same number of pages. और xy किसको बिलोंग करते हैं? फॉर ऑल xy. xy क्या है? बुक्स लाइब्रेरी की. बिलोंग्स टू द सेट A. ठीक है. हमें क्या बताना है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. देखें x एंड y है, दो बुक्स ले लें, दोनों के पेजेस सेम है. तो मैं लिखता हूं बिकॉज x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A. इसका मतलब है मैं एक बुक लेता हूं, उसके सपोज 100 पेजेस है, दोबारा वही बुक ले लेता हूं तो उसके भी 100 पेजेस ही होंगे. देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. अब मैं लिखता हूं इफ xy belongs to R, then
y x also belongs to R for all x y belonging to A। नाउ इसका मीनिंग समझ लें कि मैंने दो बुक्स ली, दोनों के लेट्स से 50 पेजेस हैं। पहले ये बुक ली, ठीक है, और फिर ये बुक ली, दोनों के 50 पेजेस हैं। अब ये बुक मैं पहले ले लेता हूँ, ये बाद में ले लेता हूँ, तो उनके भी 50 पेजेस ही होंगे, करेक्ट। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब एक ट्रांसलेट, if x y belongs to R, y z belongs to R, then x z will also belongs to R for all x y z belonging to set A। इसका भी मीनिंग समझ रहे हैं। हमने दो बुक्स ली, दोनों के लेट से 70 पेजेस हैं। कितने? 70 पेजेस। फिर एक बुक ली मैंने Z, उसके भी 70 पेजेस हैं। पहले पेयर बनाया किसका? x और y का। दो बुक्स का पेयर बनाया जिनके 70 पेजेस हैं। फिर एक तीसरी बुक ली, उसके भी 70 है। तो अब मैं पहली और थर्ड लूंगा तो भी दोनों के 70 पेजेस रहेंगे। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो तीनों है, तो इन द एंड यू कैन राइट बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 8 आई एम टेकिंग नाउ। It is shown that the relation R in the set A 1, 2, 3, 4, 5 given by R equal to, क्या रिलेशन दिया है हमें? ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर A B such that mod of A minus B is given। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। और दूसरा पार्ट है शो करना है एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एलिमेंट 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ 2, 4। अब देखें, सबसे पहले हमें शो करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और यहाँ पे जो ए बी है, ये ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू द सेट ए। यानी ए की वैल्यू 1 से 5 तक हो सकती है, बी की भी 1 से 5 तक हो सकती है। मैं रिलेशन बना ही लेता हूं। देखें, हमें चाहिए मॉड ऑफ ए माइनस बी 1। इसका मतलब है सपोज जैसे मैंने पेयर लिया 1 माइनस 3, मॉड ऑफ दिस इज 2, 3 माइनस 1 ये भी 2 आएगा। तो दोनों पेयर इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि मॉड गिवन है। अब लेट्स कम टू द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। यहां से देखते हैं, इवन चाहिए। अगर मैं 1, 1 ले लूं तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 इज इवन, तो 1, 1 कैन बी इंक्लूडेड। सिमिलरली 2, 2, देन 3, 3, देन 4, 4, 5, 5 ये सब आएंगे। अब देखते हैं, 1, 2 नहीं आ सकते, 1 और 2 का डिफरेंस ऑड होगा, ठीक है। 1 और 3 ले लें। अगर 1, 3 लिया तो 3, 1 भी आएगा, बिकॉज इट इज मॉड ऑफ ए माइनस बी विच इज इवन। तो मॉड है तो दोनों पेयर आएंगे, मैंने अभी भी बताया था। 1, 5 आएगा तो 5, 1 भी आएगा। अब देखते हैं, 1 हो गया, हाँ 1 से 1, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 1, now 3, 5 also and 5, 3 also। what else? और तो हो गया। इवन्स में देखते हैं, 2 जैसे 2 और 3 का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आएगा, 2 और 4 का आएगा। 2, 4 लिया तो 4, 2 भी लेंगे। सो दीज ऑल आर द पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच वी कैन हैव इन दिस सेट रिलेशन। अब देखना ये है कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। मैं लिखता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू आर। ए का मतलब क्या हो गया? क्या रिलेशन दिया? मॉड ऑफ ए माइनस ए शुड बी इवन, दैट इज
a minus a equal to 0 which is even, मैं लिख देता हूं बिकॉज a belongs to R for all a belonging to a. ठीक है, कहने का मतलब 1 minus 1 भी इवन आएगा, 2 minus 2 भी इवन आएगा and so on. Therefore it is reflexive. It is reflexive. अब देखते हैं, लेट कर लेते हैं सिमेट्री कंडीशन के लिए. लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर. अब हमें क्या शो करना है कि बी ए बी आर को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए. ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब a माइनस बी इज इवन. अगर ये इवन है तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ a माइनस बी इज इवन. ठीक है, मॉड में है तो बाहर माइनस ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाट डज दिस इंप्लाई? माइनस ए प्लस बी, यानी कि b माइनस ए इज इवन. अगर b माइनस ए इवन आ रहा है इसका मतलब b a बिलोंग करता है रिलेशन को. Therefore it is symmetric. I think it is clear to you. अब कंडीशन है कि ट्रांजिटिव. Let me. Now the condition is whether it is transitive or not. I am erasing this one also. ट्रांजिटिव के लिए क्या है, मैं लेट करता हूं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, अब मुझे शो करना है ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. ठीक, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू द सेट ए. व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड mod of b minus c is even. ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट मैं इस साइड पे कर रहा हूं. यहां अगर ये और ये इवन है तो इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग हो गया a माइनस बी इज इवन एंड b माइनस सी इज इवन. इसका मतलब हो गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन. अगर आप कोई भी दो इवन नंबर्स को एड अप कर लो उनका सम हमेशा इवन ही आएगा. व्हाट डज दिस इंप्लाई? a माइनस सी इज इवन. इफ a माइनस सी इज इवन दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन. अगर मॉड ऑफ a माइनस सी इवन आ गया दिस इंप्लाइज ac बिलोंग्स टू r. देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव. तो लास्ट की एक लाइन लिख लेना, बिकॉज द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट था कि ओनली 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. कौन कौन से? 1 3 5. अब यहां से शो कर देते हैं, जैसे 1 और 1 है और शो करना है 2 4 आर रिलेटेड अमंग. 2 4 अपने आप में रिलेटेड है, 1 3 5 अपने आप में रिलेटेड है. कोई भी ऑड नंबर का एलिमेंट इवन के साथ रिलेटेड नहीं है, ये शो करना है. तो अब यहां से देख लें, रिलेशन बना हुआ है. कोई भी 1 और 2 आपस में नहीं है, 3 2 नहीं है, 5 4 नहीं है, 3 4 नहीं है. ऑड और इवन का पेयर नहीं है. पेयर है या ऑड ऑड का या इवन इवन का, ऑड ऑड का या इवन इवन का. ठीक है, सो दैट शोज, आप ये रिलेशन लिख दें, दैट शोज दैट 1 3 5 they are related among themselves. 2 4 they are related among themselves, and no element of 1 3 5 is related to the element of 2 4. Starting question 9, exercise is 1.1. now what the question is, it's similar to 8.1. A is a set x belongs to z such that 0 is less than or equal to x is less than
आर इक्वल टू 12। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से 12 के बीच में है, ठीक है। इंटीजर्स को बिलोंग करता है और 0 और 12 के बीच में, इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लिए हैं, ठीक है। और अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दूं तो कैसा कैसा बन जाएगा ये 0 1 2 so on up to 12, ठीक है। रिलेशन क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट R इक्वल टू ए बी सच दैट mod of a minus b is a multiple of 4। मल्टीपल ऑफ 4 इट इज, जो पिछला क्वेश्चन था हमारा उसमें खैर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं था, तो इसके कर देते हैं इसको भी। सबसे पहले शो क्या करना है इसमें, दे आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। दो पार्ट्स हैं इसके, पहला पार्ट ये है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। Now, if I take mod of a minus a, which is 0, which is multiple of 4, 0 is here, ठीक है, 4 into 0 is 0. Now, I will write because a belongs to R as mod a minus a equal to 0, which is multiple of 4, ठीक है। फॉर ऑल ए, ये बहुत जरूरी है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ए, ठीक है। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक, इट इज मॉड, जैसे सपोज अगर मैं लेता हूं एक पेयर 1 और 5 का, a माइनस बी, मैं लेता हूं मॉड 1 माइनस 5, दिस इज 4, इट्स मल्टीपल ऑफ 4। 5 माइनस 1 लेता हूं, वो भी 4 आएगा, दैट इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर ए बी करना बिलोंग तो बी ए बी करेगा। मैं लिखता हूं लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 बना। अगर ऐसा है तो माइनस ऑफ a माइनस बी इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4, राइट। और अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मीनिंग हो गया b माइनस a, माइनस a और प्लस b बना, जिसको मैंने b माइनस a लिखा, इज मल्टीपल ऑफ 4। और अगर b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 है, रिलेशन यही है b माइनस ए, अगर b माइनस ए करेंगे तो यहाँ आर्डर फिर बी ए आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। हमने किया था कि ए भी बिलोंग करता है, हमने प्रूव किया बी ए भी करता है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब हमें ट्रांसिटिव की कंडीशन प्रूव करनी है, जैसे तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन, ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, ट्रांजिटिव। इसके लिए लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। नाउ इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर ए बी बिलोंग कर रहा आर को तो इट मीन्स ए माइनस बी, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस सी, हमने दो लिए ए बी और बी सी, इज मल्टीपल ऑफ 4। प्रूफ क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ए सी जो है वो भी बिलोंग करता है ए को, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो a माइनस बी
is multiple of 4 and b minus c is multiple of 4. दोनों को ऐड करो, अगर दो मल्टीपल है 4 के, दोनों को ऐड करेंगे वो भी मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा. a माइनस बी प्लस b माइनस c इज मल्टीपल ऑफ 4. This implies a minus c is multiple of 4. अगर ये मल्टीपल है तो इसका मॉड भी बनेगा. अगर मॉड है तो इसका मतलब हो गया AC belongs to R and this implies it is transitive. तो लास्ट लाइन लिख लेना, because it is reflexive, it is symmetric, it is transitive, therefore it is an equivalence relation. Let's come to the second part. Second part is R equal to AB such that A equal to B. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. देखें जी, मैं लिखता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए, बिकॉज A belongs to R for all A belonging to A. कैसे? That is A minus A, sorry, it is not mod, it is A equal to B. बिकॉज अगर आप एक नंबर लेते हैं, लेट्स से इसमें से 2, फिर दोबारा 2 लेते हैं तो 2 इज इक्वल टू 2, बिकॉज A इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. अब इसमें इस रिलेशन में बेसिकली अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लाऊं तो ये बनेगा 1 1 2 2 एंड सो ऑन अप टू 12 12. यही बन पाएगा. क्यों? क्योंकि कोई भी सपोज मैं लिखता हूं 1 2, तो 1 तो 2 के इक्वल नहीं होता, हमें वही लिखने हैं ताकि A और B इक्वल आ जाए. अब चलते हैं सिमेट्री पे. लेट AB belongs to R, then BA belongs to R. What does it implies? If A equal to B, then B equal to A. So simple. Therefore, it is symmetric. अब मैं ट्रांसलेट करता हूं. मैं लिखता हूं if A equal to B and B equal to C. What does this implies? A equal to C. This implies if A B belongs to R, B C belongs to R, then A C belongs to R. Therefore, it is transitive. And last line you can write, because it is reflexive, symmetric, and transitive, therefore it is an equivalence relation. So moving on to the next question. Question 10. Question 10 I am taking. Give examples of relations which are symmetric but neither reflexive nor transitive. Transitive but neither reflexive nor symmetric. इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप कर चुके हैं, बट लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं a इक्वल टू 1 2 3. ठीक है. तो मेरे को फर्स्ट पार्ट में उसको मैं रिलेशन R1 ले लेता हूँ. क्या मुझे क्या चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए. 1 2 लिया, 2 1 लिया, सिमेट्रिक बन गया. अब ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है. ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1 2 है, 2 1 है, पर 1 1 नहीं है. दैट्स ऑल. सेकेंड पार्ट R2.
क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, मैं लिखता हूं लेट्स से 1 1, ठीक है, देन 1 2, क्लियर। अगर मैंने लिखा 1 1 1 2, देखें इसके अंदर क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इसको ए ले लूं, इसको बी, तो ये बी और सी आ गया, ठीक है। 1 1 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो फिर क्या 1 2 बिलोंग करना चाहिए जो कि यहाँ पे है, तो ट्रांजिटिव बनता है। रिफ्लेक्सिव नहीं बनता क्योंकि 2 2 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक नहीं बनता क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है। तो दिस इज द एग्जांपल नंबर 3 R3। सो इट इज ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए इसलिए 1 1 2 2 3 3 तो सभी आएंगे, ये तो आएंगे। अब ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए पर सिमेट्रिक होना चाहिए, तो एक 1 2 ले लो, ठीक है। 1 2 लिया तो हमें 2 1 भी लेना पड़ेगा। 1 2 लिया, 2 1 लेना पड़ेगा। तो 1 2 है, 2 1 है और 1 1 भी है, ठीक है। अब देखते हैं 3 3, नहीं 1 के साथ 3 ही ले लेते हैं। फिर ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं इसमें एक एलिमेंट 2 3 और फिर 3 2, 2 3 है, 3 2 है, तो हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव नहीं है। तो 2 3 आ गया हमारा, 3 2 आ गया, सिमेट्रिक बनेगा। एक मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट्स से 1 2 और 2 1 भी ले लेता हूँ, सिमेट्रिक बन रहा है अभी तक। अब चेक कर लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 आ गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। अगर 2 3 है, 3 2 है, 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्रिक बन गया। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, 1 2 है, मैं इधर नीचे लिख देता हूं 1 2 बिलोंग्स टू आर। इसके बाद 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 1 3 करना चाहिए जो यहां पे नहीं है। 1 3 नहीं है तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं बना, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बन गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, फोर्थ पार्ट। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। देखें मैंने आपको बताया कि अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 तो आएंगे आएंगे, फिर आगे का हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। अब क्या बनना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी बनाते हैं इसको। लेट्स से अगर 2 3 बिलोंग करता है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखना, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 2 3 करना चाहिए जो कि यही एलिमेंट है। अब ये सिमेट्रिक बन गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 के साथ यही एलिमेंट है 2 2, यानी ये A ये B ये B ये C, तो A और C होने चाहिए, यानी 2 3 होना चाहिए, तो दैट इज प्रेजेंट हियर, राइट। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, बट 2 3 है और हमारे पास 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा, राइट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं लेट्स से 1 1 2 2, ठीक है। 1 1 कर रहा है, 1 1 कर रहा है, 2 2 कर रहा है, 2 2, सिर्फ इतना भी रिलेशन रखें, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज ट्रांजिटिव बट इट इज नॉट सिमेट्रिक। सॉरी, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव बट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए 3 3 होना भी जरूरी था। So moving on to the next question.
अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, उनका पूरा नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन 11 है, शो दैट द रिलेशन r इन द सेट A ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन r इक्वल टू pq डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम द ओरिजिन। तो रिलेशन क्या है हमारा, इट इज द पॉइंट्स pq, जो डिस्टेंस p का है ओरिजिन से सेम q का है, ठीक है, सच दैट डिस्टेंस of P from origin is same as distance of Q from origin, ठीक है। P is not equal to 0 0, ठीक है। Further show that set of all points related to point P is the circle passing through P with origin as the center। सबसे पहले हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नंबर 1, I am going to show it is an equivalence relation। Now see, I will write PP belongs to R for all P belonging to A। अब A क्या है इसके अंदर, A is the set of points in the plane। A है हमारा set of points in the plane। तो वो कैसे, सपोज मैं लेट कर लेता हूं O is the origin। तो P का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OP, ठीक है ना। जो P का डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से वही उसी पॉइंट का दोबारा ओरिजिन से नहीं तो सेम आएगा। डिस्टेंस है तो मैं इसको मॉड में रख लेता हूं, ठीक है। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री कैसे होगा, आप लिखेंगे कि अगर PQ बिलोंग करता R, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट नाउ, इट बिलोंग्स टू R, देन QP बिलोंग्स टू R। व्हाई, बिकॉज लेट्स से O को मैंने ओरिजिन लिया है, ठीक है, O इज द ओरिजिन, तो आई कैन राइट OP, PQ का मतलब है OP should be equal to OQ। If OP equal to OQ then OQ जो है वो किसके इक्वल आएगा, OP के, ठीक है। That means distance from O to P is same as distance from O to Q, ठीक है। तो फिर O का जो Q से डिस्टेंस है वो O से P का डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो that's the reason it is symmetric। तो सिमिलरली आप ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हैं कि PQ बिलोंग्स टू R, Q, अब मैं यहां PQ लिया तो R नहीं लूंगा, लेट्स से मैं इसको ले लेता हूं P1 Q1 बिलोंग्स टू R, P Q1 Q2 belongs to R, then P1 and Q2 belongs to R। जो O का डिस्टेंस, इसका मीनिंग क्या हो गया, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है, यानी कि OP1 किसके इक्वल, OQ1 के। फिर ये और ये डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से, इसका मतलब OQ1 किसके इक्वल, OQ2 के। तो क्या ये whether this implies that OP1 equal to OQ2? Yes, this implies, क्योंकि OP1 OQ1 के इक्वल है, OQ1 किसके इक्वल है, OQ2 के, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, therefore it is transitive। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको आप लिख सकते हैं पर। So 12 to 16 we leave it for the next lecture। नेक्स्ट लेक्चर में 12 to 16